اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو تمام امت کے واسطے ہوگی۔ خداوند کی زندگی بخش کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کا وسیلہ سے خدا آپ سبوں کو برکت دے۔ سبھی آوازیں بلند کہیں خداوند کا شکر ہو، کیونکہ ہم واجب ہے کہ وقت، حالات، موقع کی مناسبت جو بھی ہو، لیکن ہر حال میں ہمیں خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور آج کے دن تو سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ ہمارا منجی خداوند یسوع المسیح جو ہماری خاطر اس روز زمین پر انسان بھر کر اس روز زمین پر آئے اور اس نے ہماری نجات کے لیے، مخلصی کے لیے، ہماری رہائی کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے اپنے آپ کو اس جہاں کے گناہوں کی خاطر نظر کر دیا، اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے لیے اس نے صلیب پر قربان کر دیا، تو لہٰذا اس کے لیے واجب ہے کہ ہم اپنے خدا کی شکر گزاری کریں۔ آمین۔ اور کلام مقدس میں پڑھ رہے تھے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ میں پڑھ رہی تھی کلام مقدس کو تو لکھا کہ پہلی بات تو یہ جو چرواہے تھے یہ کوئی غیر معمولی چرواہے نہیں تھے، اور دوسری بات اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ رات کے وقت میں ایک میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ میدان جو ہوتا ہے وہ ایک کھلی جگہ ہوتی ہے جہاں پر نہ کوئی چھت ہوتی ہے، نہ کوئی دیوار ہوتی ہے، نہ کوئی روم ہوتا ہے، نہ کوئی اوڑھنے کے لیے، بچھانے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بھی فیسلٹی ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک میدان ہوتا ہے اور جہاں پر زندگی کی کوئی بھی سہولت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو چرواہے تھے یہ اس میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی کیا کر رہے تھے؟ نگہبانی کر رہے تھے۔ تو عزیزو، آج کے دور میں آپ، میں، ہم بھی وہی چرواہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہمارے پاس چھت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس بچھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ہم بھی اپنے آپ کو ان چرواہوں کے مشابہ کریں تو ہم بھی اس تنہائی میں، اس رات کے لمحات میں ہم اپنے گھروں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چرواہوں کی طرح جا کر اپنے غلہ کی نگہبانی کریں، کیونکہ یسوع المسیح نے کہا کہ جا کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو اس لیے یہ جو چرواہے تھے یہ جاگ رہے تھے، یہ اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تو دیکھو، جب یہ اس اندھیری رات میں، جب یہ اس تنہائی کے عالم میں، یہ اس تاریکی کے عالم میں جب یہ اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ بھی ایسے حالات میں ہیں، آپ بھی صحرا میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہم سے زیادہ بہتر ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے کہ آج کے دن بہت سارے گھروں میں بھی ایسا ہو رہا ہوگا، بہت ساری فیملیز میں بھی ایسا ہو رہا ہوگا کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، میرے پاس زندگی کی سہولتیں نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اس چیز کو لے کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں نہیں جانا، ہم نے چرچز میں نہیں جانا کیونکہ ہمارے پاس کپڑے جوتے نہیں ہیں۔ نو، یہ غلط بات ہے۔ خدا ہمارے دلوں کو جھانچتا ہے۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے، ہمیں ویل اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے کہ جب یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے کپڑے جوتے لینے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ایمان سے ہٹ جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں جانے سے پریشان ہو جانا چاہیے۔ نو، یہ جو چرواہے تھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کپڑے پھٹے پرانے ہوں، ان کے پاس بھی کچھ بھی نہ ہو، انہوں نے اچھے کپڑے نہ پہنے ہوں، اچھا لباس نہ ہو، اچھا جوتا نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ جاگ رہے تھے، اپنے غلہ کی نگہبانی یہ کر رہے تھے۔ لیکن ایسے حالات میں جب آپ چاروں طرف اپنی نظر دوڑاویں اور آپ
ये सोच ले कि अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब कोई भी नहीं है मेरा, अब मैं बस तन्हा हूँ, अब मैं बस अकेली हूँ, अब मैं बस अकेला हूँ, अब कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन कैसे चलेगी। जब आप ये सारी चीजें सोच रहे हो तो देखो फिर याद रखना मेरे अजीजों, तब आपके लिए एक बड़ी खुशी की नवीद आएगी, तब आपके लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत आएगी। जैसे इन चरवाहा के पास आ गए और फरिश्ता उनके चगिर्दा आकर खड़ा हो गया और उनके चारों तरफ रोशनी फैल गई और नूर चमका और फरिश्ता ने कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। हालेलुया, खुदा के नाम को जलाल मिले। और मेरे अजीजों, आज आपके लिए भी ये बड़ी खुशी की बिशारत है, आज आपके लिए भी ये बड़ी खुशी की नवीद है। और जब आप ऐसे हालात में होंगे तो खुदा खुद अपने फरिश्तों को आपके लिए भेज देगा, खुदा खुद उस फरिश्ता में होकर आ जाएगा और आपके चकित वो नूर चमकेगा, क्योंकि उसने फरमाया कि जिंदगी का नूर है मैं हूँ, जो कि मेरे पीछे चलेगा वो फिर कभी तारीकी को ना देखेगा, क्योंकि यीशु मसीह नूर है, वो हमेशा की जिंदगी है और वो हमेशा की जिंदगी इस रोज जमीन पर आ गई। और यूहन्ना कहता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की नवीद है, ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। आज हमने अपने हालातों पे नहीं सोचना, आज हमने अपनी निगाहें अपने खुदा की तरफ लगानी है। और ज़बूर नवीस कहता कि अपनी निगाहें उस खुदा की तरफ लगाओ और आपकी जो निगाहें हैं उस ईमान के बानी और काबिल करने वाले यीशु की तरफ लगी रहनी चाहिए, जो इस जहां का और कुल कायनात का और अलबेरवा का, और जिसने फरमाया कि इस जहां का भी इख्तियार मेरे पास है और अलबेरवा की कुछ का मेरे पास है, जिसने फरमाया अल्फा और ओमेगा हूँ अव्वल और आखिर हूँ, देख में मौत और कब्र पर गालिब आया हूँ और कोई मेरे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो हमेशा की जिंदगी है, वो आपकी खुशी है, वो आपका इत्मीनान है, वो आपकी तसल्ली है, वो आपकी तशफ़ी है और वो आपका अच्छा चरवाहा है। अब लिखा, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सिर्फ फरिश्ता ने से ये नहीं कहा उन चरवाहों को कि ये खुशी की बिशारत सिर्फ तुम लोगों के लिए है, बल्कि ये जो खुशी है ये आने वाली नस्लों पुश्तों जमानों के लिए होगी और ये तुम लोगों के लिए भी है, तुम लोगों के घरानों के लिए भी है, खानदानों के लिए भी है, अहले इलाका के लिए भी है, तुम्हारे शहर के लिए भी है, तुम्हारे मुल्क के लिए भी है, तुम्हारी कंट्री के लिए भी है। ये खुशखबरी आज आपने दूसरों को जाके देनी है कि आपने परेशान नहीं होना। आपके हालात कैसे हैं, आपके लिए खुशी की उम्मीद है, आपके पास यकीनन खुदा का फरिश्ता आएगा और जो कहेगा कि डरो मत। हम देखते हैं कि जब यूहन्ना को जजीरा पतमस में फेंक दिया गया था तो वहां पर भी खुदा आ गया। जब आपके हालात बिगड़ रहे होंगे, जब आपको नजर आ रहा होगा कि अब कुछ नहीं है, अब मेरी जान जाने वाली है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपके लिए खुशी की नवीद आ जाएगी, तब आपके लिए बड़ी खुशी की बिशारत आ जाएगी और खुद आ जाएगा और यीशु मसीह खुद आ जाएगा और वो खुद आकर अपने दाहिने हाथ को तेरे सर पे रखेगा और कहेगा कि बेटा डर मत, देख डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा हूं। वो खुदा जो आज से हजारों साल पहले अपने नबियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बरगज़ीदों के साथ वो बोलता, उनकी हिफाजत करता और उनका फरिश्ता जब खुदा के लोग बनी इस्राएल की गुलामी में से आ रहे थे, जब वो बियाबान में भटक रहे थे, तो तब भी खुदा वो दिन के वक्त अपर में होकर और रात के वक्त आग के सतून में से होकर उनकी हिफाजत करता था, वो उनके आगे आगे चलता था। ये उनके लिए खुशी की नवीद थी और ये पैगाम था कि तुमने कभी भूलना नहीं है कि तेरे खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया, तेरा खुदा तेरे साथ है, तेरा खुदा तेरे आगे आगे चलेगा। और आज यही पैगाम हमारे लिए भी है कि ये खुशी की नवीद, ये खुशी की बिशारत हमारे लिए है कि हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमसे कहता है कि मेरे बेटे मेरी
दाहिने हाथ को तेरे ऊपर रख दिया है, मैंने तेरे लिए अपनी जान सली पर दी है। ये तेरे और मेरे लिए खुशी की उम्मीद है, ये खुशी की बिशारत है, ये खुशी की नवीद है। और आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। चाहे हम मैदानों में है, चाहे हम सहराओं में है, चाहे हम रेतले इलाकों में है, चाहे हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे बहन भाइयों ने, हमारे खानदानों ने हमें धिक्कार दिया हो, हमें निकाल दिया हो, हमारे अजीजों कारब ने हमें निकाल दिया हो, लेकिन जो सबसे बड़ा है, जो सबसे उत्तम है, जो इनको बनाने वाला, तख्लीक करने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह, वो हमारे साथ है। और उसने कहा कि डर मत। ऐसे खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। और मेरे अजीजों, ये खुशी की बशारत हम सबों के लिए है। और खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और वो अपने फरिश्ते को भी भेज देता है, और जो फरिश्ता के खुशी की उम्मीद देता है, और जो कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूँ। आपके पास कभी कोई बुरी खबर नहीं आएगी, बल्कि खुदा अपने फरिश्ते को भेजेगा आपको अच्छी खबर देने के लिए, आपको बरकत की खबर देने के लिए, आपको तसल्ली की, आपको तशफ़ी की बात बताने के लिए खुदा अपने फरिश्ते को भेज देगा। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और अपने सर को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे। आज की जिंदगी बख्श पर कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, glory to God Jesus, the praise of God, hallelujah. Sithara bara sindoria bara latia ratira bara sitere bere shandara bara, hallelujah Jesus। खुदा बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा, आपके नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पाक खुदा, आपके नाम को खुदावंद हम जलाल देते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और जो कौमों अम्मुदौर कबीलों के खुदा है, और जो कादर मुतलिक बाप है, और जो कल्ला राज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, बाप शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा लम्हात के लिए, आपके जिंदगी बख्श पाक कलाम के लिए खुदावंद पाक खुदा के, जो आपने ये खुशखबरी का पैगाम है अपने लोगों तक पहुंचाया और फरमाया कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ पाक खुदा। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ आपकी पाक खुदा। बाप आज झुके हुए तमाम जानों के लिए, मैं अपने तमाम अजीजों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए पाक खुदा, जितने भी आपकी हजूरी में झुके हैं खुदावंद, इनके लिए मैं आपकी हजूरी में भरकर चाहती पाक खुदा, इनके लिए आपकी हजूरी